زوردار تالیاں صرف اسی کے جلال کے لیے. ہڈن ہیروز سلسلہ پیغامات جو ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں میں کلام سناتی ہوں جب موقع ملتا ہے اور وہ ہے چھپے رستم. ہاں جی کس کس کو یاد ہے چھپے رستم؟ تو آئے میرے ساتھ حوالہ دیکھیں پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 27 آیت. یہاں یوں لکھا ہے کہ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایسے کریکٹر یا ایسے کردار چن رہے ہیں جو غیر معروف ہے، معروف نہیں ہے، جو شہرت یافتہ نہیں ہے، جو عام ہے، جنہیں کوئی جانتا نہیں، جن کی شناخت نہیں ہے، نہ وہ فوجی قائد ہے نہ وہ کسی ایسے عہدے پر فائز ہیں. خدا اپنے جلال کے لیے ان کو چن لیتا اور زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ خدا تو قدرت والا خدا ہے. وہ چاہے ٹیڈی کو استعمال کرے، چاہے جانور کو، درندے کو، انسان کو، حیوان کو، عورت کو یا مرد کو، جس چیز کو وہ چاہے وہ چن سکتا ہے. کہ ہم سب اس کی تخلیق ہیں، ہم اس کی یوں کہہ لیں فرما بردار ہیں. جس کو چاہے وہ چن لے، جس سے چاہے وہ اپنی خدمت دے لے. ہاللیلویا. اور آج جس کردار کے بارے میں سناؤں گی یا جس کردار کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گی وہ ایک خاتون کا ہے. وہ ایک خاتون کا ہے. ہاں جی سب تیار ہیں؟ ایک عورت کا کردار ہے. نہ تو وہ بادشاہ تھی، نہ بادشاہ کی بیوی تھی، نہ ملکہ تھی، نہ کوئی فوجی قائد تھی، نہ کوئی نبیہ تھی اور نہ شہرت یافتہ تھی، بلکہ عام سی خاتون تھی جس کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. اور حالانکہ اس کے ارد گرد جو تھے حالات بکھرے ہوئے تھے، حالات سازگار نہیں تھے، ناساز تھے، لیکن پھر بھی خدا کی تابعداری کرتے ہوئے، خدا کے حکم کو مانتے ہوئے اس نے اپنی عقل مندی سے، اس نے اپنی دانش مندی سے تاریخ کا رخ موڑ دیا، حالات کو بدل کر رکھ دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ سوچ رہے ہوں گے نام نہیں بتایا جا رہا اور اس کردار کا نام ہے ابیجیل. کیا نام ہے؟ ابیجیل. وہ بہت ہی راست باز تھی اور اس نے رخنوں میں کھڑے ہو کر تباہی کو روکا. تباہی کو روکنے میں اس نے مدد کی، امن و امان کو بحال کیا اور راست بازی کو قائم کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ جلدی سے ایک حوالہ دیکھیں پہلا سیموئیل اور اس کی 25واں باب اور اس کا 25واں باب اور اس کی آیات ہیں 32 سے 43 تک. یہاں یوں لکھا ہے کہ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک ہو. غور سے سنتے جائیں. اور تیری عقل مندی مبارک ہو، تو خود بھی مبارک ہو. مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا بدلہ لینے سے باز رکھا. ابیجیل کا مطلب ہے شادمانی کا وسیلہ. عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے شادمانی کا وسیلہ، یعنی اسلام کی خوشی، خوشحالی، امن و امان، راست بازی کو قائم کرنے والی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اس کے ہسبینڈ کا نام، اس کے خاوند کا نام تھا نبال، کہ بہت ہی ظالم، بد کردار، گھمنڈی، غرور سے بھرا ہوا، احمق. اور اس کے نام کا مطلب بھی احمق ہے، نادان ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ نشے باز بھی تھا اور غصیلا ہے، غصے سے بھرا. اور اس کے اپوزٹ اس کی بیوی جو ہے ابیجیل جو ہے وہ عقل مند ہے، دانشور ہے اور خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے اور سمجھ و بوجھ رکھتی ہے. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ہوا کے رخ کو دیکھ کر وہ اپنا رخ موڑ لیتی تھی. یعنی اتنی خدا کی حضوری میں چلنے والی تھی، خدا سے محبت کرنے والی تھی اور خدا کے حکموں کو ماننے والی تھی اور عقل مندی کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ لیتی تھی، عقل مندی کے ساتھ لیتی تھی. ابیجیل کی کہانی سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابیجیل کی کہانی کے
साथ साथ हम देखेंगे दाऊद बादशाह के को भी कि दाऊद बादशाह का उसके साथ क्या ताल्लुक था, यानी किस तरीके से अबीजल का उसके साथ ताल्लुक बना। तो बताना चाहती हूँ कि सैमुएल नबी की वफात के बाद दाऊद अपने 600 नौजवानों के साथ दश्ते फरान की तरफ मफरूर हो गया, निकल गया। छोटी सी यानी मैं जल्दी जल्दी मुख्तसर कहानी सुनाऊंगी। आपको पता है कि साउल बादशाह बनी इसराइल का बादशाह था, पहला बादशाह था, हुकूमत कर रहा था, लेकिन उसके किरदार की वजह से, उसके यूं कहना चाहिए नाफरमानी की वजह से उसे हटा दिया गया। लेकिन उसके हटाने से पहले ही सैमुएल नबी ने दाऊद बादशाह को मसा कर दिया था। लेकिन दाऊद बादशाह के बारे में जब साउल को पता चला तो वो उसका जानी दुश्मन बन गया। सबको पता है ना कि वो किस तरीके से उसे मारना चाहता था, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता। तो एक वक्त ऐसा होगा कि साउल से दाऊद भागता होगा, दश्ते फरान में जाके मफरूर हो गया, छुप गया। और जब दाऊद दश्ते फरान में छुपा हुआ था तो करीब ही ये शख्स यानी नबाल जो था यानी माउन में रहता था, लेकिन किरमन में उसकी ममलकत भी थी, या किरमन में उसकी यूं कहना कि ये माल और दौलत भी था, जायदाद भी थी। पहाड़ियों के करीब ये जो किरमन है ये पहाड़ी इलाका है। और मैंने पहले बताया क्योंकि ये दौलतमंद था, इसके पास भेड़ बकरियां थी, गधियां थी, यानी बहुत माल और दौलत था। और जब इसके चरवाहे, मैंने बताया क्या कहाँ रहता था, माउन में, और मलकियत इसकी किरमन में भी थी। और जब इसके चरवाहे भेड़ बकरियां चराने जाते थे तो वो किरमन और दश्ते फरान जो है वो तकरीबन 1-2 मील का फासला था। और आपको पता है भेड़ बकरियां चलते चलते दूसरी चरागाहों में भी चली जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जहां दाऊद छुपा हुआ था, नबाल की भेड़ बकरियां चरवाहों के साथ वहां भी चलने जाती थी। और दाऊद के साथी हमेशा उसकी भेड़ बकरियों के, उसके जानवरों के, उसके माल मुआशरों की हिफाजत करते थे। कितने लोग हैं जिनको यहाँ तक समझ आई? हाँ जी, समझ आई है? तो आज जोरदार तालियां खुदा के साथ। तो बात कर रहे थे कि जब नबाल की भेड़ बकरियां चरवाहे चराते थे तो अक्सर आपने देखा होगा कि चरवाहे आपस में झगड़ा भी करते हैं कि तेरी भेड़ ने ये कर दिया, मेरी भेड़ ने ये कर दिया। तो जब कभी नबाल की चरवाहों की भेड़ों को खतरा आता था तो दाऊद के नौजवान उसको बचाते थे। और किसी की जुर्रत नहीं होती थी दाऊद के रोब दबदबे की वजह से कि नबाल की भेड़ों को हाथ भी लगाएं। तो एक वक्त ऐसा हुआ कि भेड़ों के बाल कुतरने का मौका आया। क्या समझे? भेड़ों के बाल कुतरने का मौसम था, बाल कुतरने का मौका आया। जैसे फसल की कटाई होती है, गंदम की कटाई होती है तो लोग बहुत खुशी मनाते हैं। किसको पता है? सबको पता है। हमारे साथ वाले मुल्क में तो बड़ा जश्न मनाया जाता है, ढोलक बजाए जाते हैं, भंगड़े डाले जाते हैं कि आज फसल की कटाई हो रही। तो ऐसा ही जो क्या कहना चाहिए कल्चर है कि जब अमीर लोग जो है भेड़ बकरियों की ऊन उतारते हैं या उनके बाल काटते हैं तो वो मौसम में, उस मौसम में, जिस मौसम में उनके बाल काटे जाते हैं तो वो उस वक्त वो भी बड़ा जश्न मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। तो कहानी को आगे लेकर चलते हैं कि जब वो मौसम के मुताबिक भेड़ों के बाल कुतर रहे थे, उनकी ऊन उतार रहे थे, तो मैंने पहले बताया कि दाऊद के ऊपर तो इस वक्त सख्ती थी। दाऊद तो छुपा हुआ था और कैसे वो इतना ज्यादा खा पी सकता था या खुराक कैसे हासिल कर सकता था? जितना उनके अनाज उनके पास था वो तकरीबन खत्म और हो गया था। तो ऐसा हुआ कि दाऊद ने अपने कास्तों को यानी 10 जवानों को नबाल के पास भेजा और उनसे कहा कि जाके नबाल से कहो कि दाऊद कहता है, तेरा बेटा कहता है कि मेहरबानी करके, आज तेरे पास सब कुछ है, मेहरबानी करके हमारे लिए खाने पीने के लिए और हमारी जरूरत के मुताबिक कुछ खुराक मुहैया कर। कौन कह रहा है? दाऊद ने अपने कास्तों के हाथ नबाल के पास, बोले नबाल के पास पैगाम भेजा, क्योंकि उसके यहाँ क्या हो रहा था? भेड़ बकरियों की बाल काटे जा रहे थे, ऊन उतारी जा रही थी। तो जब नबाल को पता चला कि उसके दाऊद के लोग आए हैं तो बड़े गुस्से में आ गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। हालां होना ये चाहिए था कि अगर आज उसने मदद मांग ली है तो उसने भी उनकी मदद कर रहा था। वो भी तो उस वक्त जब इसकी भेड़ें खतरे में थी तो वो भी उसकी मदद कर रहा था।
आए और उन्होंने उनसे कहा कि दाऊद ये कह रहा है कि हमारी मदद कर, और गुस्से में आके कहने लगा कि दाऊद कौन है, यस्सी कौन है, दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है, मैं नहीं उन्हें जानता, ये तो अपने मालिक से भागा हुआ है। और ऐसे इन दिनों में बहुत से ऐसे लोग भागे रहते, मेरा इनसे क्या रिश्ता, क्या ये चाहता है कि जो जश्न या जो मैं खा पका रहा हूँ या जो मैं तैयारी कर रहा हूँ बाल उतरने वाले मेहमानों के लिए, क्या ये चाहता है कि मैं दाऊद के लोगों को दे दूं, मैं क्यों नहीं दे, मेरा इनसे क्या रिश्ता, मेरा इनसे क्या ताल्लुक। यानी दूसरे लफ्जों में दाऊद के कास्तों की इंसल्ट करके उसने भेज दिया। होना क्या चाहिए, नेकी के बदले नेकी करनी चाहिए, भलाई के बदले भलाई करनी चाहिए। लेकिन इस शख्स ने उसके कास्तों की तौहीन की, और जब कास्तों की तौहीन की यानी उनकी बेइज्जती की, तो जब कासद वापस आए और उन्होंने दाऊद को बताया कि वो किस तरीके से कह रहे हैं, और जब दाऊद को पता चला कि उसने मेरे कास्तों की बेइज्जती की है, तो उसने प्लान कर लिया कि आज तो जो मर्जी हो जाए मैं इस पर हमला करूंगा, मैं इस पर हमला करूंगा और जो कुछ इसके पास है वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा। दाऊद ने अपने जवानों को तैयार किया और हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन सुन ले, क्योंकि कहानी किसकी सुन रहे हैं, ऊंची आवाज से बोले, कहानी किसकी सुन रहे हैं, कहानी किसकी सुन रहे हैं। और जब अबीजेल को पता चला कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे खामद ने दाऊद के भेजे हुए कास्तों की बेइज्जती की है, और दाऊद के एक नौकर ने उसे बताया कि दाऊद के कासद आए थे और मेरे मालिक ने यानी तेरे हस्बैंड ने उनको बेइज्जती करके निकाल दिया है। अब अबीजेल को जब पता चला तो अबीजेल सारी बातें परेशान तो हुई, लेकिन उसने इस बात को गौर से सुना और बड़ी फर्माबरदारी के साथ हालात का जायजा लिया और उसने फैसला किया कि मुझे कुछ करना है। इसलिए उसने अपने नौकरों से कहा कि जल्दी करो, और अबीजेल ने जल्दी जल्दी अपने घोड़े तैयार किए, अपने गधे तैयार किए, और उसने हर किस्म की खुराक जो उसके दाऊद को और उसके कास्तों को यानी उसके लोगों को चाहिए थी, उसने वो सारी खुराक यानी 100 रोटियां और 500 जो है मेवे के मशकीज़े, और इसके साथ अंगूरों के गुच्छे, उसके साथ अंजीर, भुना अनाज, सारा अनाज जो होना चाहिए, जो एक आदम को देना चाहिए, वो दलेरी के साथ जल्दी जल्दी भागी घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर इस अनाज को लाद कर आगे ले गई। किसके पास लेकर गई, दाऊद के पास लेकर गई। और जब दाऊद के पास लेकर गई है तो जाके उसने गिरकर उसके पांव में सजदा किया और उसे कहती कि बादशाह सलामत, यानी ऐ मेरे मालिक कान में मेरी बात सुन। और जब उसने कान में बात सुनी, और वो कहती क्या है, सुनने को तैयार है, सुनने को तैयार है, जाके कहती है ऐ मेरे मालिक नबाल की अहमदपन पे ना जाना, ऐ मेरे मालिक मैं तेरे पास इसलिए आई है कि तू खून रेजी से बाज आ जा, ऐ मेरे मालिक मैं जानती हूं कि तू खुदा की जंगें लड़ता है, मैं जानती हूं कि तू खुदा का खादम है, मैं जानती हूं कि आने वाला सरदार तू है, मैं जानती हूं कि आने वाला मुख्तार तू है, मैं नहीं चाहती कि तू एक अहमद के लिए खून रेजी करे या जंग करे या बर्बादी करे, क्योंकि तू तो खुदा के लोगों के लिए जंग करता है, तू तो खुदा के दुश्मनों को मारता है, क्योंकि ये भी तो तेरी लोग है, ये भी बनी इस्राइल में से खानदान था। नबाल का खानदान मैं पहले बता चुकी हूँ कि कालब के घराने से था, और कालब का घराना बनी इस्राइल में से था, यानी ये भी तो दाऊद का ही घराना था। इसलिए उसने कहा मालिक, इसके जो उसके नाम का ही मतलब अहमक है, जिसके नाम का मतलब ही नादान है, जिसके नाम का मतलब ही बेवकूफ है, उसकी हरकतों पे ना जा, उसके कहने पे ना जा। मैं आई हूँ तेरे पास, मुझे माफ कर दे, मेरे घराने को माफ कर दे, और इस खून रेजी से बाज आ जा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा माल और दौलत तो बाप दादा से मिल जाती है, मिरास में मिलती है, लेकिन अक्लमंद बीवी खुदा की तरफ से मिलती है। हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के लिए। और लिखा है कलाम में कि जब दाऊद ने अबीजेल को दूर से देखा तो उसने कहा कि यह खुदा की तरफ से है, यह सलामती का पैगाम लेकर आई है, यह अमन का पैगाम लेकर आई है, यह बहाली का पैगाम लेकर आई है। और जब उसने ये सारा कुछ सुन लिया तो वो जंग से
बाज आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए, और जोर से तालियां खुदा के कलाम के लिए। एक बार मेरे साथ देखिए, पहला शमूएल 25 बाब और उसकी 33 वर्ष। जब दाऊद और अबीजेल की मुलाकात हुई तो दाऊद उसे क्या कहता, फिर सुनिए। तेरी अक्लमंदी मुबारक हो। यानी जो अक्लमंद है, जो अक्लमंद है वो तो काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। दाऊद कहता है कि तेरी अक्लमंदी मुबारक हो और तू खुद भी मुबारक हो, जिसने मुझको आज के दिन खून रेजी और अपना इंतकाम लेने से बाज रखा। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि नबाल मर गया। नबाल मर गया। कैसे मरा? जब अबीजेल दाऊद के पास पैगाम लेकर गई थी, साजो सामान लेकर गई थी, तो ये पीछे ज़ियाफत कर रहा था, खूब नशे में धुन था, शराब पी रहा था, मैनोशी कर रहा था और ज़ियाफत में मगन था। लेकिन जब अबीजेल वापस आई, इसे पता चला, उसने आके बताया कि तूने अपनी कम अकली से ये काम किया, तो डर के मारे उसका दम निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि दाऊद कैसा है। उसे पता था कि ये तो खुदा की जंगें लड़ता है, तो मैं जो हूं जिसे मैंने नाफरमानी की मुझे, लेकिन डर से ही वो मार गया। इससे पहले तो सुलह भी हो चुकी, लेकिन उसे इतना वो डर गया कि डर के मारे मर गया। इसलिए खुदा के खादमों के लिए कभी मुंह ना खोला करें, खुदा के खादम के बारे में कभी खिलाफ बातें ना करें। अगर कोई करता है तो उसे कह के मत करें। अगर खुदा के खादम में कोई गलती है, कसूर है, तो आए मिलकर दुआ करते हैं, खुदा खुद ही उसे समझा देगा। इसने खुदा के खादम के खिलाफ इस कदर कुफर बता, यानी आपको मैंने बताया है, वो खुदा का मंसूब था, वो खुदा ने उसे मुकर्रर किया हुआ था। तो इसलिए जब इसने ये बोला तो खुदा ने उसे खुद मार दिया। आप जानते हैं, अमल की किताब उसके 23वें बाब में लिखा कि हेरोदिस को कीड़े पड़ गए और खुदा के फरिश्ते ने उसको मार दिया। इसके साथ साथ जल्दी से बताऊंगी, गिनती की किताब उसके 16वें बाब और उसकी 30 और 32 आयत में लिखा है कि जब मूसा बनी इस्राइल को लेकर जा रहा था मुल्क मौदा में, यानी वादा की भी सरजमीन में लेकर जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह उन्होंने क़याम किया। तो मूसा ने तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश की, जिनमें से कोरा, नातन और अब्राम ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मूसा कौन होता है हमें हुक्म देने वाला, लेकिन खुदा देख रहा था, खुदा को ये बात पसंद ना आई और उसी वक्त ये तीनों बंदे जो हैं वो मर गए। इसलिए खुदा के कलाम के खिलाफ, खुदा के खादमों के खिलाफ मत बोला करें। अगर मैंने पहले कहा किसी में आप गलती देखते हैं, या तो डायरेक्ट जाके उंगली रखे पास्टर साहब के पास, पास्टर साहब की ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे, या उसके लिए दुआ करेंगे, खुदा ये कमी उनमें से दूर कर। खुद खिलाफ ना बोले, अपनी दुआओं को ना रोके। ये कहानी आपने सुन ली कि किस तरीके से अबीजेल जो थी वो उसने अपने घराने को बता दिया। बताना ये चाहती हूँ कि अबीजेल के कैरेक्टर से हम ये देखते हैं कि अबीजेल रखनों में खड़ी होगी। हम अबीजेल की कहानी से ये सीखते हैं कि हमें रखनों में खड़े होना है। अबीजेल रखनों में खड़ी होगी। एक तरफ दाऊद बादशाह था और एक तरफ उसका हस्बैंड था। हस्बैंड तबाही की तरफ लेकर जा रहा था खानदान को, और अबीजेल अपने खानदान की भलाई चाहती थी, इसलिए वो दोनों के दरमियान आ गई। वो बादशाह के पास चली गई, रखने में खड़ी होगी और अपने खानदान को, अपने बाल बच्चों को उसने बचा लिया। दाऊद के पास तलवार थी, अबीजेल के पास हिकमत थी। हालेलुया। दाऊद के हाथ में तलवार थी, वो पल में सब कुछ तबाह कर सकता था, लेकिन अबीजेल के पास हिकमत थी, दानिश्वर थी, अक्लमंद थी, सूझबूझ रखती थी। वो जानती थी कि मुझे क्या करना है, इसलिए वो रखने में खड़ी हो गई। अपने खानदान के लिए तबाही को उसने बचा लिया, अपने खानदान की तबाही को उसने खुशहाली में बदल दिया। रखने में खड़ी हो गई और शिकायत करने लगी, दाऊद से कहने लगी, मैं पहले भी बता चुकी, दाऊद से कहने लगी तू बादशाह, आने वाला बादशाह है, तो क्यों एक बंदे के खून से अपने हाथों को रंगना चाहता है, क्यों इंतकाम लेना चाहता, अपने ही कौम को क्यों मारना चाहता है। वो रखने में खड़ी होकर उसने अपने खानदान को और दाऊद को भी बहाल कर लिया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में भी इस बात की जरूरत है कि हम सबको एक दूसरे के लिए रखने में खड़े होने की जरूरत है। आप लोगों से मिला करें, देखा करें कि अगर कोई शख्स कमजोर है, अगर कोई शख्स जो है वो दुआ में कमजोर है, या उसे कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, तो उठ खड़े हुआ करें, रखनों में खड़ा होना सीखे, दुआ करना। रखनों में हम खड़े होकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं, उसके लिए बरकत चाहते हैं, उसके लिए भलाई चाहते हैं, ताकि वो दूसरा कमजोर शख्स जो है वो भी बहाल हो सके। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के नाम के लिए। कलाम में लिखा है कि नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है। जानते हैं, नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है और हलीमी गुस्से को खा लेती है। और इंसान की किताब में लिखा है कि दूध बुलाने से मक्खन निकलता है। हाँ जी, पता है, दूध बुलाने से मक्खन निकलता है, लेकिन नाक मरोड़ने से लहू निकलता है। और उसके आगे है कि कहर फसाद को उभारता है, कहर फसाद को पैदा करता है। फिर सुने, दूध बुलाने से मक्खन निकलता है। हिकमत अनाई से चलेंगे तो आपको खुशहाली आएगी। मक्खन खुशहाली की अलामत है। सलामती से रहेंगे, सुलह सफाई से रहेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। लेकिन झगड़ा करेंगे, नाक मरोड़ेंगे तो खून निकलेगा। जिसका मरोड़ेंगे आगे बुरा या मुक्का तो लगेगा। इसलिए कहर से भी फसाद होता है, इसको रोकें। अगर आपके घर में कोई गुस्से वाला है, अगर आपके घर में कोई लड़ाई करने वाला है, तो उसको रोकें। आप जल्दी से बुलाना शुरू किया करें ताकि मक्खन निकले, यानी सुलह सफाई हो जाए। हमेशा ख्याल रखें कि आपके बच्चे कहाँ हैं। बच्चे लड़ते तो नहीं, बच्चे गुस्सा तो नहीं करते, बच्चे गाली तो नहीं देते। रखने में खड़े हो जाए, फसाद को दूर करके, खून बहने ना दें। जैसे कौमों के लिए शफायत की गई, नबियों ने रखने में खड़े होकर अपने लोगों को बचाया। हमारा हीरो, हमारा खुदाम यीशु मसीह रखने में खड़ा हो गया। हालेलुया, रखने में खड़ा। हम जो गंदे थे, घिनौने थे, कोई कौम ना थे, आदम के गुनाह की वजह से पिछड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, कोई बचाने वाला नहीं था। खुदा उसके बातों से दूर थे, तारीकी में थे, अंधेरे में थे। लेकिन एक आ गया जो रखने में खड़ा हो गया, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हम जो बाप से बिछड़ चुके थे, हम जो परगंदा हो चुके थे, वो आ गया, वो दरमियान में खड़ा हो गया। उसने आके अपना खून बहा दिया, उसने आके हमारे लिए कोड़े खाए, उसके मुंह पे थूका गया, उसके हाथ और पांव में कील जड़ेंगे, लेकिन उसने उफ ना की, क्योंकि वो रखने में खड़ा हो गया था। वो आदम जो बाप से बिछड़ चुका था, दोनों हाथ करके उसने एक तरफ से इंसान को, आदम को, दूसरी तरफ से बाप को अपने साथ अपने हाथों से हमारा मेल मिलाप कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो आ गया और रखने में खड़े होकर पूरे बेईमान इंसान को बचा दिया। आई जोरदार तालियां खुदा मेरे नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुश है खुदा यीशु मसीह के लिए, खुश है कि वो रखने में खड़ा हो गया, खुश है कि उसने हमें बचा लिया। अगर वो रखने में खड़ा हो गया तो उसने हमें भी यही सिखाया, ठीक है? उसने हमें भी यही सिखाया कि रखनों में, गैप में खड़े हो, बिछड़ों को करीब लेकर आए। हमारी भी ड्यूटी है। जब वो रखने में खड़ा हुआ, उसने हमें अपनी बादशाही में शामिल कर लिया। जब वो रखने में खड़े होकर उसने अपने मेरास में शामिल कर लिया, आसमान का शहर बना दिया है, जहां ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना आहुराला है, ना आंसू है, बल्कि शादमानी ही शादमानी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी चाहिए कि अभी तक जो लोग बिछड़े हुए हैं, उनके लिए रखनों में खड़े हैं, उनको बचाने का फैसला करें। अबीजेल के बारे में मैंने बताया कि नबाल मर गया। पता है नबाल क्या हुआ? मर गया। तो जब मर गया तो वो बेवा, मर गया तो वो बेवा, तो बेवा का तो हक है ना शादी करना, बेवा का हक है ना शादी करना। अब उसकी मर्जी है, करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो ना करे। जब अबीजेल दाऊद के पास गई थी तो उसने ये कहा था कि ए बादशाह, जब तू अपने तख्त पर बैठे तो मुझे याद रख।
जब तू अपने तख्त पर बैठे तो मुझे याद रखना, मुझ पर अपने कर्म की नजर रखना। और जब उसका हस्बैंड मर गया तो दाऊद को याद था, दाऊद ने शादी की पेशकश कर दी, दाऊद ने अबीजेल को शादी की पेशकश कर दी और अबीजेल ने वो शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। और वो अपनी 5 लौंडियों के माल, उस वक्त तो जाना है, लिखा 5 लौंडियों के हमरा दाऊद की तरफ चल पड़ी, अपने साजो सामान के साथ 5 लौंडियों के साथ दाऊद के साथ चल पड़ी, यानी शादी की, दुल्हन बन गई। बोले क्या बनी? दुल्हन बन गई। आज हमारा भी एक दूल्हा है जो आने वाला है, हमारा भी एक दूल्हा है जो दुल्हन को लेने आने वाला है। दूल्हा दुल्हन को लेने आया, और वो दुल्हन यानी हम जो है, जो हम दुल्हन है, हमें रास्ते के लिबास से तैयार होना है। हालेलुया। हमें बड़े की शादी में शरीक होना है। हमारा भी दूल्हा है, दुनियावी दूल्हे के तो मिल ही जाने हैं। मैं अपने खुदा अपने दूल्हे की जो लेने आला अपनी दुल्हन को, तो दुल्हन को कैसे होना चाहिए? रास्तबाजी के लिबास से आरास्ता, महीन लिबास के साथ, पाकीज़गी के साथ, जिसके बदन में झुर्री झोल कुछ ना हो, वो ऐसी दुल्हन को लेने आने वाला है। तो अगर अभी तक आप सही तरीके से दुल्हन तैयार नहीं है, रास्ता नहीं अपने आप को किया, तो दूल्हा आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेकर जाने वाला है, तो तैयारी कर ले, तैयारी कर ले। तैयारी कैसे होगी? हर रोज दुआ करें, हर रोज खुदा का कलाम पढ़ें, हर रोज गवाही सुनाएं, हर रोज उसके साथ रफाकत रखें, हर रोज उसका शुक्र करें, हर रोज कहें खुदा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में हुई, जहां तू चाहे मैं जाऊं, जो तू चाहे मैं करूं, अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो इस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर वो दूल्हा लेकर यानी दाऊद बादशाह अपनी दुल्हन को लेकर जा सकता है, तो हमारा बादशाह भी जरूर आएगा हमें लेने के लिए। आज एक हवाला देखते हैं, मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 7-8 आयत। यहां लिखा, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार साफ महीन कोतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कोतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। मैंने पहले बताया कि रास्तबाजी के काम कौन से हैं? खुदा के साथ वफादारी से चलना, सर्द गर्म नहीं, झूठ भी बोल दिया, धोखा भी दे दिया, हस्बैंड को भी धोखा दे दिया, बीवी को भी धोखा दे दिया, रास्तबाज के रास्तबाज, ऐसी रास्तबाजी नहीं। महीन लिबास, कतानी लिबास जो बहुत ही महंगा है, अपने आप को इस तरीके से अपना खुदा का समझे कि आप कीमती हैं, आप कीमती हैं, आप पाकीज़ा हैं, अपने आप को पाकीज़ा होना है, क्योंकि आपको इस दुनिया से कूच करना है, दूल्हे के साथ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए।